Okay, so good morning everyone. Once again, I'm Subhashish Das and I'll be your TA for this TA session. And today we'll be covering mainly week 3. So in the last session, we missed a few questions. So we'll be covering them all and I'll give you some questions on my own. And also because week 3 graded assignments have also been finished, we'll discuss those. Is that fine? You can unmute yourself at any point if you want to speak. Yeah. Okay then. So let's just get started. So this one I believe we have already done. So the sum of the first n natural numbers. I'll just start sharing my screen. Okay, so I hope it's visible. Okay, so I'll just copy the questions from this one and put them in a note so that we can solve those without any previous input. Okay, so this is the first question. So can anyone just tell me what I can do over here? So I'll just put this into split screen mode. Let's say we want to find a high. What is the probability that someone is necessarily equal to 1? Option C is correct. It will be one if everyone in the room is necessarily equal to 1. Okay, so what if we want to find the probability is necessarily equal to 175? Then we actually got the PDF for it, do the integer of it, put the apply for the eating me what the thing is. Then you will use condition. Don't worry. okay, so I hope this is visible to everyone. Okay, so we have just some boilerplate code over here for hello world, and we have the question over here. I'll just increase the size. I think there will be one or two questions of this comprehension in your quiz one. So be familiar with this. There is no question. Yeah, so the first question is essentially we have to calculate the sum of the first n natural numbers, and will be given an integer n as an input. Okay, and we have to store this in the variable sum. We have done this before, but right now we are doing this from scratch. Okay, so the basic code is this. So now, can anyone tell me what we should do first? First, create this non-variable implementation, this character mod. Then you will see this comprehensive version. Define the variable. Okay, so the variable should be of what type? Integer. Okay, so I'll just call this int n is equal to. Do I have to initialize this with anything like 0, 1 or anything? No, sir. No, sir. No, right? Since we are going to be updating this anyway, the initial value does not matter. So scan f percentage d and n. Okay, so we now have some value in n. So next, what should I do? Like we did the solution by formula last time, so I want it by loop this time. We can do using for loop. Okay, so I'm implementing a for loop over here. What should the condition be? What's the condition after this? I less than equals to n. I less than equals to n.
increment by 1. I incremented by 1. Okay. So now, after this, what should I do? N plus is equal to I. Are you sure about that? I'm sorry about this. Just to take another variable, sir. You have to take another variable, right? Okay, so the other variable is, let's just say, int sum. So what is this supposed to be? 0. 0. Since we are not updating this, we are directly incrementing this. Like we are not taking any value and storing it in there. We are directly doing operations on this. So it's going to be like this. So now what should I do? Sum plus equals to I, sir. Plus equals I. I. Okay, so this is the code for now. And do you think it will run? We No, have to sir. Just print the value of apply the printf. We have to do the printer. Right? Percentage D and sum. Okay, so now this looks good. yes. Sir. Okay. So now after running this, There is also one topic that has been mentioned. That is I don't really consider that important for taking this. That kind of consider that complex. let's say that I want up to like 10 or 90. It's giving 4095. Can anyone confirm if this is correct? So all the applications are correct. Let's see the list comprehensive version. Honestly, just a second. I will cover it, but in the form of questions that I get. We are taking x comma y. We are saying for x in range 1 to 100. And we are saying for y in range 1 to 100. It's what? 90 times 91 Yes, sir. by 2. So 45 times 91. So yeah, it looks correct. Yes, sir, it is correct. Okay, so that works. So now then, this is how we are implementing a for loop to solve this one. So we have, like, I hope you guys don't have any doubts in this one. Like, it's quite simple. Anyways, I'm giving a question from my own. I want you guys to write a code that will take a value and it will return the multiplication of that value. So it will take two values and it will multiply them together without using the multiplication operator. So I should not see the star anywhere. Okay, so the task is simple. You have to multiply numbers without using the multiplication system symbol. So can you guys just try to brainstorm how you could do that? For the last, it is going 1 to 9, right? Okay, let me see what you are saying is correct or not. In the last option, everything is the same as the previous option, but they are taking elements from 1 to 101. Like it is going to change. So can you guys just brainstorm for a bit and tell me? So let's come at the last iteration, which will be 100. So if I select 100 here,
what will be there? It will be 0, right? Are we permitted to use zeros? We have created a list of tuples which we have to form x, y, z, x plus y, z. And they are saying that both elements are positive integers, right? 0 is not positive. So 0 is not permitted. So this option is not correct. The last option. Let's see. These three options which we have selected, first, second, and fourth are correct. Right? Do you have any doubt regarding this question? Okay, see, the sessions are not on YouTube. You have to go to the sheet, and that will connect to a drive where the sessions are recorded. This time we are taking only the half of it. Is that okay, We Aditya? are saying x should be less than or equal to 1. Like order should be maintained. In the previous question, they are ignoring the order. They do not care about ascending order, descending order. Like x So you guys got any idea about y this? can be greater. Both were permissible. But in this option, that x should be less than or equal to y. Right? So I'll just write that over here. added. So let's see how to tackle it. Elements should be positive integers. Just keep that in mind. So first we are going to check on this long implementation. We are implementing a list. We are seeing for x in being 100. We are seeing for y being 100. Just like before. We are adding all the two conditions, and if both of them are satisfied, that is why we have added and here, not or. Then we are going to apply it. So everything is correct? Correct. Let's see the second option. X comma y or x in range 100 or y in range 100. Both the conditions are checking using and. So it is a list comprehensive way. Okay, so I'll just give you guys a hint. We'll be using a for loop in this one. The first option, the second condition is not checked. So it is not. Okay. We are saying x comma y or x in range 100 or y in range 100. So there is no condition. It will take anything. So we are not going to take it. And in the last option, you can see x comma and then 1 comma for y in range 1 comma. So what is going to happen? It is going to take everything. It is not adding this condition here. So this option is also incorrect. Only second and third options are correct. Right? If any of you finds anything or gets any idea, just feel free to drop a message in the chat box or unmute yourself and you can speak. We are making another list. Right? And inside this list, we are adding zeros for j in range 3. Like we are adding 3 zeros. Samir, could you please unmute yourself and guide me through the code? Three lists of this kind. Because it is saying for I in range 3. What is going to happen? It is a matrix. Like, let's try your idea out. So, could you please guide me? And all of the elements are 0. This is what is happening. You just need to get this and It is put in the value. 3 lists, Is that correct? and each list have 3 zeros. 8 by 9. And they are saying give me equivalent code. So let's see first option. And is empty. We are adding for I in range 3. We will append an empty list for j in range 3. We will go to the last. So it is appending. Yes, Mohit, you want to say something? So integration. I write this program and after run, List zero. this is showing an error. Second option. Correct the convert int to constant character of or showing on message. Okay, so can you share your screen? List of lists. Second option is clearly incorrect. We can debug it right now. For I in range 3, by
adding zeros. So it is just a symbol is containing three zeros, right? It is also incorrect. And one option is remained. So if you don't get anything so well, you can filter out all the incorrect options, and you will get the correct outcome. Yes. Aditya, how many of the test cases did you manage to pass? Yes. But if you do, then it will be one, right? Yeah. Every portion, these lists are just rows. Yeah. Okay, so just try dropping this in the. You guys have a G space for the C programming, right? Yes. Okay, so Aditya, you could try, contacting the support team or the course instructor for this in this G space. They'll be able to help you out. I don't actually have enough authority to change anything. So just try contacting them, and maybe you'll be able to get some help. Okay, Mohit, you can share your screen. We'll take care of yours now. This you get something like 2 by 9 into 9, 2 by 9 into 9 by 2 into 2 by 9. Is that correct? Okay, so I'll just. Mohit, are you going to present? No, not at this time. Okay, it's fine. Given the range, right? Let's say if its range is 1. Okay, so let's just go step by step and try to solve this one. So, what we want to do right now is to basically create a program that will multiply for us. So, we are essentially like building the multiplication logic that is used behind the multiply symbol. So, firstly, we need a for loop equals 0 I less than b I plus plus. So can anyone tell me how many times this loop will run? Can any of you tell me how many times this loop will run? So B times. It will run b times, right? Yeah. So now, what can I do in order to get a times b? Probability that it lies between 1 and 40. Right? Expected value of F. You understand what is happening in the question? Variance. I'll give you 10 years of water. Is that right? 10 years is a good time or taking too much? Otherwise, it should have number 0. No. Oh, sure. Can anyone tell me what I have to do for the product here? All the products. You're free to try. If you get it wrong, then we can just try again. If you get it right, then good for you. We are checking our index is even or odd. And it is what is asked in the question. So product plus equals a. Right? So it is doing the correct thing. It is checking if the index is index or sorry, index is even. Okay. So will this solve the issue? It is appending 1. Like, will this solve the question that we have? It is appending 0. Everything is correct. Also, we have to print the value of product. Right. And if we move to the second option, we are taking input
we are using 1 if I is even. Otherwise, we are taking 0 There is a comma. Yeah. or I is n. But you already know the syntax. So now then, let's just try running this We one. had seen yesterday that this kind of this comprehension is used. Okay, so And first let's just try 7 and 8. then the So this should give us 56, right? And it does give us. So this is a good one. So we have made a multiplication over here. Now, can we make a division one? Okay, so quick question. You guys have made the. You guys have seen the week 5, right? this comprehensive way on the first option. This is Yes, sir. I have. one. Okay, so how many of you have finished it? Just raise your hands. How time is going to do it n times. This is asked in the question. Check the side should be. So, question is that. Okay, so looks like you guys still have to revisit the functions and all that. That's fine. We can just make this over here without the functions. So at this point, the important parts come. Like it's important to use comments and stuff like that. So A, B, that's okay. Product is fine. So from here, we'll start using comments. So let's just call this one multiply. Let's write one for division. Okay, so what can we do to divide it? Like I want a quotient, I want a remainder. Like you should told me yesterday about it. So One hint I'll give, it will involve a while loop. word, what is the word? We are taking one word in L, right? So it is going to give us these words, one by one. So what we are doing, we are taking these words. By the way, you guys are free to solve this on your own laptops. And if you manage to figure it out, you can just, ask to screen share, and then we can just, evaluate it. And if some debugging is needed, we can do that as well. First word is 1 and its count is 3. So 1 colon The session notes. I mean, I'm not really making any session notes, but if you want the questions, you can just. I guess I'll add this to the questions that I created in the last session. I'll just in a dictionary. It selects. open up that one. So it is selecting 1, 2, 3, 4, 5. So what it is doing? What? It is selecting P of P. These are the values. It's fine. And beside it, originally, we are creating the values of it as keys and the keys of it as values. So we have swapped. You see, in this case, everything is reversed. So the key should be the integer
and the value should be the string. So this option is correct. Your answers are correct. All right. Since no one else is here, I think We are discussing the pre-value. the question. Does anybody else here? Assuming that is the function that has to Suchita, you want to say something? the time we have already seen this implementation we are working with this function instance. Here additionally and key first one. C are all integers from two directions. Okay. So all the keys should be two directions. Value corresponding to a key should be seen as the key is Sure, Syed. Which distribution was it? true and false can be found Exponential is using this and function. you can see expectancy is already given. Variance is already given. Exponential is given. Variance is given. The serial is given. The serial is also given. Hello, sir. Yeah, Mohit? So all like what Yeah, I got a problem on that last one program. I shared my screen. Okay, yeah. everything else was already Is just a false. And did you manage to fix it? 1 to 2 already. I only recorrect the errors. I tried myself, but I did not solve. Okay, so do you have that like code that we can just see and like figure out what is Please wrong? help to verify it. Okay, it has clarified, yeah. अगर हिंदी कंफर्टेबल हो तो फिर हिंदी में भी बात कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ हाँ हाँ, वो प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में थोड़ा. हाँ, मैंने प्रोग्राम जो बताया था आपने वो ट्राई किया अभी हम्म. पुराना वाला उसमें, लेकिन अभी मुझे एरर आ रहा है. एरर कहाँ पे आ रहा है? मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी हो रही है. हाँ, Making the value is एरर. same as before. अच्छा, ये cannot convert int star to constant कर int for argument 2 into int scanner. हाँ वही एरर, कैन नॉट कन्वर्ट. Hmm. कॉमा वगैरह सही से लगा है, परसेंटेज डी भी लगा है. हाँ, एक बार रन करके देखा ना. Are you confident you can do every question here? Just the past paper. We are not We adding have enough time. Let's see. this element. We are adding it. ये मीट का मैसेज एक बार हाइड कर लेना. We On Wednesday, I'm going to do two हाँ. is to create this element. On Saturday, And Uh, inside these revision. We can either do revision or or want to start P2, depending on what the then you have because a the online online is not long, right? like this. It's just एक बार टर्मिनल में कोई नंबर लिख के देखना. What is the element? टर्मिनल में हाँ, न्यू टर्मिनल के कोई नीचे में टर्मिनल खुला है. यहाँ पे. हाँ, कौन सा नंबर? कोई बस टेस्ट करना है कि काम कर रहा है या नहीं. अपना एडिशन वाला था ना प्रोग्राम, ये मल्टीप्लिकेशन का था. मल्टीप्लिकेशन. तो 56. नहीं वो नहीं, मतलब 7 स्पेस 8 या वैसे कुछ कर दे. 7 स्पेस कैसे? 7 स्पेस 8. अच्छा, स्पेस देना है 7, उसके बाद में स्पेस देके 8. हाँ, 8. ठीक है. ठीक है. That's fine. And if you have any problem, right, just please put it in the G space. अच्छा, तो प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ था. What I would suggest is, from my personal view, I did not. मेन है int a b. अभी मैं बिगिनर हो गया नहीं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही है. अरे कोई नहीं, वो क्या है, एक्सपीरियंस लोगों को भी हो जाता है कभी कभार हाँ, प्रॉब्लम. इसलिए मुझे अपना क्विज तक के अपना ओपीपी तक के अच्छा करना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ. एक काम करना, तो ये जो कॉमा है उसके बाद में स्पेस ऐसे देते रहना. तो ये इनके बाद कॉमा के बाद
हाँ ठीक है, कॉमा के बाद, कॉमा के पहले नहीं. बाद में. Okay, comma. So it's just a suggestion, but if you're content with this, you don't have to eat text. We are discussing it. We are Whatever discussing is it running how out to the content content as as well, well, right? right? There's no such thing as और नीचे में प्रोडक्ट के साइड में. अब एक बार रन करके देखिए. हो गया. अभी हो रहा है. 7 स्पेस 8 इस वाला करके देखिए. And in this option, we are assigning this appendix. एंटर. We cannot assign अब काम कर रहा है. हाँ, आ गया. ठीक है. तो अभी वो डिविजन वाले प्रॉब्लम पे कोशिश करना, हाँ, और उसके बाद फिर से देखेंगे. ठीक है. मुझे एक बात पूछनी थी भैया. ठीक है. ओके, व्हाट इज इट? हाँ, मुझे नहीं क्या मेरा सी प्रोग्रामिंग का और एससीटी का जो स्कोर है वो विजिबल नहीं हो रहा है मेरे इस पे डैशबोर्ड पे. वो असाइनमेंट्स का बोल रहे क्या? हाँ, बाकी सब सब्जेक्ट्स का हो रहा है, लेकिन इसका नहीं हो रहा, सिर्फ प्रोग्रामिंग और इसका तो एससीटी का. दैट इज नॉट रियली अ बिग प्रॉब्लम. मतलब ऐसा होता रहता है कभी कभार. अगर हाँ, बैकएंड पे क्योंकि कुछ ऐसा अपडेट हो रहा है तो कभी कभार नहीं दिखाता है वो. ऐसा. ठीक है. तो जस्ट कंटिन्यू, and if anyone else has finished the division code, then they can just put it in the chat box or raise their hand, and I'll come to you. Stop sharing. Okay. और आप ये स्टैंड अलोन कर रहे हो कि मतलब कैसा? वही मैं स्टैंड अलोन कर रहा हूँ. SCT test is not done. एक सेकेंड. ओके. आदित्य, कोई मेल आया होगा SCT के लिए? डैशबोर्ड पे शो हो रहा है, डैशबोर्ड पे शो हो रहा है अपने एससीटी के लिए ऑप्शन. अच्छा. तो honestly speaking, I don't have access to the dashboard like that. अभी तेरे को बता रहा था सर. if anyone can guide, please do. जहाँ पे अपने को कोर्स शो होता है, अपने कोर्स पे डैशबोर्ड वहाँ पे दिखता है, कॉर्नर पे लिखा है एससीटी का. Is this option correct? Right? Okay, so I just checked. The deadline was till 11th. तो अभी कुछ 2 दिन तरफ है. हाँ, तो अभी कुछ 2-3 दिन है, तो वहाँ से देख सकते हैं. ओके, ये URL कुछ डाला गया है यहाँ पे. हाँ, शायद से एससीटी का हुआ. काफी लंबा ही बता दे. तो आप स्टैंड अलोन कर रहे हो? आप कहाँ से हो वैसे? कौन से स्टेट से हो? मैं ओडिशा से. ऐसा नहीं, मुझे इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसलिए लिया. मैंने बीटेक नहीं किया, डायरेक्ट 12th के बाद यहाँ पे एडमिशन किया. सही बात है. बाकी वही, ये अगर स्टैंड अलोन कर रहे हो तो फिर इंटर्नशिप वगैरह वो सब अभी से ही ढूंढने लग जाओ, क्योंकि खुद से ढूंढने पड़ेंगे. अप्रेंटिसशिप वो सब का IIT मद्रास देख सकता है, लेकिन अगर इंटर्नशिप या वैसा कुछ देखना है तो फिर वो बेटर रहेगा खुद से ही देखना. तो कम से कम अपने को सर फाउंडेशन लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा.
फाउंडेशन लेवल हाँ कंप्लीट करना पड़ सकता है। बाकी अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह है या फिर फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स है या हाँ मुझे गेम पसंद है रोबोटिक्स डेवलपमेंट, में, इसके लिए आया मैं। तो वो सब थोड़ा बहुत ऐसे खुद से पढ़ के कुछ प्रोजेक्ट्स बना के वो इंटर्नशिप वगैरह देख सकता है। हाँ ठीक है ना। और अभी जो ये लोग गए थे जो आईआईटी बॉम्बे में कुछ गए थे, वो उन्होंने कहाँ पे मतलब क्या किया था प्रेजेंटेशन वगैरह? वो एक्चुअली एक कंपटीशन है ई अंडर कह के, तो हाँ वो एक रोबोटिक्स कंपटीशन है, वो सारे कॉलेजेस को ओपन है और हर साल ऐसा बेसिकली कुछ कुछ थीम्स के ऊपर वो कंपटीशन होता है। ऐसा हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली, मैं खुद पार्टिसिपेंट हूँ, हालांकि मेरा जो प्रोजेक्ट है थोड़ा धीरे चल रहा है उसमें। ऐसा मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, पहले से मैं बहुत कुछ बना चुका हूँ, बट मेरा थ्योरी थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं क्या थ्योरी मैथ, हम्म। मैथ की वजह से। एक सेकंड, हम ये जो जनरल डिस्कशन है वो थोड़ा बाद में कर सकते हैं एट द एंड ऑफ ओके डिस्कशन। ओके। अंकित, कुछ कहना? भैया एक डाउट था सर। 4 अगस्त का PYQ है, 4 अगस्त। हम्म। तो भैया स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसके बाद तो एक्सप्लेन कर सकते हो? ठीक है। भैया इसमें जो ऑप्शन मतलब मेरा थोड़ा बीज आ रहा है, थोड़ा इसको बता दो, इसको समझ नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा, तो एसेंशियली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला कंडीशन ये है कि इफ x इज ग्रेटर देन 10, तो इनिशियल x 15 है तो वो कंडीशन मीट होगा। पहले तो a प्रिंट होगा तो वो डेफिनेटली होगा। इफ x इज लेस देन 20, x प्लस इज इक्वल टू 20, x प्लस इक्वल्स 10। ठीक है, तो यहाँ पे एसेंशियली ये इफ एल्स है, राइट? तो फिर ओके। एसेंशियली इसे अगर मैं लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँ, 20 से अगर कम है तो उसमें 10 ऐड करना है, 20 से ज़्यादा है तो बी प्रिंट करना है, अगर 20 ही है तो सी प्रिंट होगा, है ना? तो फिर ये 15 है, 20 से कम है, तो एक्स में 10 ऐड होगा और उसके बाद बाकी के दो कंडीशन ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो स्किप हो जाएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है और ठीक लास्ट में ये प्रिंट एफ डी है, तो है। हाँ फाइनल जी, आंसर जो हमारा निकलेगा वो ए डी निकलेगा। AD। ठीक है ठीक ठीक भैया। और एक एक में और था भैया, वेट, ये नहीं है शायद। ये आप पढ़ कैसे सकते हो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, मुझे समझता ही नहीं है। वो थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस गेम डेवलपमेंट में है तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए। ओके ठीक है। तो वो डिवीजन, एनीवन हैज मेड एनी प्रोग्रेस इन द डिवीजन क्वेश्चन? If not, I'll just get started on the solution. So we had not assigned any kind of function called head. So how can we call it beforehand? So this will be one kind of error. Okay, in that case, I'll just get started with this. So, firstly, we have A and B. So, we'll have to decide in order because A divided by B and B divided by A both are different. So, for this case, I'll just choose A. A is the dividend, and B is the divisor. So, it will be A divided by B. So, in the first case, we'll do while A minus B is greater than 0. So, do you guys understand this logic? So, we want to keep going until B is greater than A, right? So, every time it goes like this, we'll do. I'll just add one more over here. Int quotient equals 0.
and then another int remainder equals 0. So firstly we'll have this one. While a minus b is greater than 0, we'll do a uh, quotient uh, plus plus, and then a minus equals b. So does this make sense? हम ये क्यों कर रहे हैं? Does this do you guys understand this? हाँ, डिवीजन करने के लिए. Can you explain why I did this? Solve automatically divisional questions after entering the value. ना उतना तो ये प्रोग्राम का फंक्शन है. मैं ऐसा क्वोशिएंट प्लस प्लस और a माइनस इक्वल्स b ऐसा क्यों लगाया? बाकी कुछ भी तो कर सकता था. They will also run here because we are printing it. Directly, as you can see in this function, there is a print statement, and then what we are doing, Syed, you want to say something? we are again like to make it another print statement. So as it is going to be this, there will be getting and then. Okay, looks like you may be having some mic issues, Syed. It's fine. It's fine. So after this, what will happen? Can you guys just tell me? Like, what will happen when the program runs? अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है. जब हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं, डिवीजन साइन, तब भी हमें क्वोशिएंट ही मिलता है ना? हाँ, वो तो मिलता है. बाकी ये क्या कर रहा है जो डिवाइड कर रहा है? मतलब प्रोसेस कौन से प्रोसेस से डिवाइड कर रहा है? लाइक अगर हम a की वैल्यू 6 लेते हैं और b की वैल्यू 5 लेते हैं, तो वो 6 माइनस 5 1 देगा हमें. और यही अगर हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे 6 डिवाइड बाय 5, तो वो भी हमें 1 ही देगा. अच्छा, नहीं, वो एक कोइंसिडेंस है. आई मीन 6 माइनस 5 और 6 डिवाइडेड बाय 5 कोएफिशिएंट और जो डिफरेंस है वो 1 रहेगा. ओके, लेकिन 7 डिवाइडेड बाय 5 वो भी 1 देता है, और 7 माइनस 5 जो है वो 2 देता है. बाकी ट्रैक पे आ रहे हैं. यूर ऑन द राइट ट्रैक. क्या क्वोशिएंट प्लस भी तो होगा ना? हाँ, तो फिर द लॉजिक बिहाइंड दिस इज बेसिकली whenever we are greater than b we can divide, right? So whenever a is greater than b, essentially it is telling, or I can just directly I can just do a greater than b. So whenever a is greater than b, we can just do quotient plus plus, which means we are adding 1 to the quotient and we are subtracting b from a. So this is essentially division by repeated subtraction. And in the end, whatever is left in a, that is going to be our the remainder. So if I were to just illustrate the process, it is something like this. So essentially, it's like this. So let's say that we have 9 and we have 4. 9 divided by 4. So what
essentially this program is doing is that we are doing 9 minus 4. First, we are comparing whether 9 is greater than 4. This is true. So we are going to then quotient plus plus. So I'll just keep like a few variables over here. So quotient is equal to 0, a is equal to 9, b is equal to 4, right? So let's say a greater than b. 9 is greater than 4, so that is correct. It will run. So after this, what will happen is that quotient plus plus. So now the quotient will become 1. And after that, we are subtracting a minus equals b, right? So we are subtracting 4 from 9, so it will become 5. And b will remain as 4. We are not changing b. So that is what happens after one loop. Now for the second loop, what we can do is once again we'll be checking a greater than b. So this time it's 5 greater than 4, right? So this time also it will pass q plus plus and a minus equals b. So now what we have 2, 1, 4. इतने दूर तक समझ में आ गया? हाँ सर। या तो अभी एक लास्ट टाइम ये कंपैरिजन होगा a ग्रेटर देन b. अभी 1 ग्रेटर देन 4 है, तो फिर ये 0 है, ये पास नहीं होगा, राइट? तो यहीं पे आके वो लूप रुक जाएगा. सो नाउ इफ वी लुक एट दिस, वी हैव 2, 1 एंड 4. तो इनका मतलब क्या है? जो हमारा क्वोशंट है वो 2 है, और a में जो बचा वो हमारा रिमाइंडर है. और अगर नॉर्मली हम इसे डिवाइड करेंगे 4 से, 4, 9, तो तब भी हमें यही मिलता है कि ये 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1, जहाँ पे 2 हमारा क्वोशंट और 1 हमारा रिमाइंडर. तो ऐसे करके ये प्रोग्राम काम करता है डिवीजन के लिए. कोई डाउट्स? एनी डाउट्स? नहीं सर. एक बार फिर से हल्का सा रिवीजन. ठीक है. तो हम कोड में क्या कर रहे थे? जो हमारा कोड है इसमें, ये पहले कंपेयर करेगा कि a b से बड़ा है कि नहीं. अगर a b से बड़ा है तब जाके ये नीचे वाला कोड रन होगा, ठीक है ना? तो जो क्वोशंट है वो हमें काउंटर जैसे यूज कर रहा है. जब जब भी ये बड़ा है b से, ये काउंटर एक एक करके बढ़ेगा. ओके. और उसके बाद जो a है, हम उसमें से b को एक एक करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो फिर एक बार कंपेयर किया, ये a b से बड़ा है, क्वोशंट को एक बार बढ़ाया, b को a से एक बार सब्ट्रैक्ट किया. वैसे एक और बार इसे चेक किया, अभी जो नया a का वैल्यू है वो b से बड़ा है क्या. अगर बड़ा है तो हम क्वोशंट बढ़ाएंगे और फिर से b को a से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऐसे रिपीट तब तक करेंगे जब तक b a से बड़ा ना हो जाए या a b से छोटा ना हो जाए. ओके. और उसके बाद हमारा जो a रहेगा, अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे थे, तो इसमें रह जाएगा हमारा रिमाइंडर, और जो क्वोशंट है उसमें हमारा क्वोशंट आएगा. हाँ. ठीक है ना? तो फिर ये एक और क्या कह रहे हैं, ऐसा कैलकुलेटर टाइप का ही है. सो एसेंशियली हम अभी क्या कर रहे हैं, एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बना रहे हैं जो हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते देगा अपने को वैल्यू डालते हुए. हाँ, तो वैसा एक है ये. और अभी नेक्स्ट वाला हम कौन सा करें? कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन बताइए आप लोग. कुछ अंडर रूट वगैरह फाइंड करने वाला. मॉड्यूलर मॉड्यूलो फंक्शन वैसा, मतलब
ये डिवाइड जो है ये मॉड्यूलो का भी काम कर लेता है, क्योंकि ए में तो इसका रिमाइंडर रह जा रहा है ना, ये ए के अंदर। हाँ हाँ तो मॉड्यूलो इसमें इनबिल्ट है पहले से ही। इसके बाद एक्सपोनेंशियल ट्वेल्व फंक्शन एक देखते हैं, ठीक है ना। तो फिर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं। बेसिकली हमें ये चाहिए कि जो ए है, जो हमारा ए है यहाँ पे, वो हमारा बेस होगा और बी हमारा एक्सपोनेंट होगा। तो हमें चाहिए ए टू द पावर बी। तो अब वो कैसे करेंगे? एक हिंट दे रहा हूं, ये हमारे मल्टीप्लाई से बहुत सिमिलर होगा। हम उतना टाइम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो ये एक चीज बोलना, तो क्या मैं डायरेक्टली ये कोड को कॉपी कर सकता हूं? मतलब अगर मैं वैसा करूंगा तो ये काम करेगा क्या? सिर्फ अगर उस प्लस इज इक्वल टू की जगह मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दिया तो हो जाएगा सर। एग्जैक्टली तो इसे लिया, यहाँ पे पेस्ट किया और इसे चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया हमारा एक्सपोनेंट फंक्शन। अब ठीक है, हमारे पास ऐसे 3 फंक्शन आ गए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंट। अब मेरे को ये चाहिए कि यहाँ पे एक मैं रखूं, क्या कहते हैं, इंट सिलेक्ट। सेलेक्ट को ऊपर में ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एक क्या कहते हैं, यूजर इनपुट होगा। तो मैं सेलेक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ये एक चाहिए ऐसे। अच्छा, ये सिलेक्ट को अलग से लिखना ही बेस्ट रहेगा। ये कार डेटा टाइप के बारे में पता है ना? हाँ सर पता। ठीक है, तो वही मैं इन दोनों के बीच में एक कैरेक्टर डेटा टाइप डाल रहा हूं, ताकि हम सिलेक्ट कर पाए कि हमें इनमें से कौन सा ऑपरेशन लगाना है। मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है या एडिशन। एग्जैक्टली तो अभी मैं यहाँ पे एक स्विच लगाने वाला हूं, और इस स्विच के अंदर हम डालेंगे सिलेक्ट। सबसे पहले मैं डिफॉल्ट केस को लिख लेता हूं। डिफॉल्ट केस में हम प्रिंट कर लेंगे इनवैलिड फॉर्मेट। ठीक है, तो अभी केसेस बताते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज करें? कैपिटल एम ले लो। कैपिटल एम। आई मीन एसेंशियली ये हम ह्यूमन लैंग्वेज की तरह लिखने की कोशिश करें। हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे, a इंटू बी, ए डिवाइडेड बाय बी, ए टू द पावर बी, वैसे टाइप के लिखते हैं ना। सिंबल यूज कर सकते हैं। हाँ, स्टार को यूज करते हैं, लेकिन उसमें मजा क्या है, खुद का सिंबल यूज करते हैं। यहाँ पे हम स्मॉल एक्स यूज करते हैं, नोटबुक वगैरह वो सब में जैसे हम लिखते हैं वैसा कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ये हो गया हमारा, क्या कहते हैं, एक केस। मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे एरर क्या बता रहा है? अच्छा, इंटीग्रल कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ कोई ना, ये इनम वगैरह अभी पढ़े नहीं है, वरना वैसे करके ये कर पाते। नो इश्यूज, इसमें नंबर ही असाइन कर लेंगे।
सर मैंने सी प्लस प्लस को यूज करके एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया है, अगर आपकी जरूरत हो तो मैं दिखा सकता हूँ। थोड़ा बाद में दिखा लेंगे क्योंकि सी प्लस प्लस हमारे क्या कहते हैं, कोर्स के थोड़ा बाहर जाता है। जी सर ठीक। तो केस वन में मल्टीप्लिकेशन को रखते हैं। मैं डायरेक्टली इसे ही डाल दे रहा हूँ। we have to keep the correct arguments. Like when I am calling the function, then I have to give the correct size. When I am making the function, I can call them anything I want. Just और थोड़ा सा रीडेबिलिटी के लिए इसे इंडेंट कर लेंगे। stats and it's enter. उसके बाद केस टू पे आते हैं। I will get the correct output. Right? And there is केस टू में डिवाइड को रख लिया। observe it. The Titanic was before, yes, but if I am with the second one. This arranging it in right? Next column. It is going to the last column of this section. This is already looked ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट में आ गया। डिवाइड के केस में एक एक्स्ट्रा रख लेते हैं कि क्या कहते हैं, अच्छा नहीं, यहाँ पे ब्रेक भी लगाना है ना। उससे पहले प्रिंट परसेंटेज डी कॉमा ए, ये मैं क्यों लिखा जरा बताइए। आंसर प्रिंट करने के लिए करेक्ट वैल्यू। वो तो यहाँ पे भी हो जाएगा ना प्रोडक्ट में, या फिर ये क्वेश्चन को ही प्रोडक्ट हम लिख के डायरेक्टली कर सकते हैं और उसे एक क्या कहते हैं, ये कम हो जाएगा और रिमाइंडर तो हम यूज ही नहीं करें। तो फिर ये एसेंशियली एक छोटा सा कैलकुलेटर हो गया हमारा। इसके बाद थोड़ा बेसिक केसेस भी लगा लेते हैं यहाँ पे। केस 0, यहाँ पे मुझे एडिशन वाला केस चाहिए, तो वो कैसे करेंगे। वी कैन यूज फॉर लूप एडिशन के लिए। हाँ सर। मैं ये चाहता हूँ कि केस अगर मैं 0 लिखूं तो सम निकले, जैसे यहाँ पे केस अगर 1 लिखूंगा तो प्रोडक्ट निकलेगा, केस 2 करूंगा तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकलेंगे। वैसे ही मुझे केस 0 जब मैं लगाऊं तो ये चाहता हूँ कि ए और बी का सम निकले। फिर डायरेक्टली प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी भी कर सकते हो। एग्जैक्टली, ज्यादा ओवरथिंक करना नहीं है आपने। ओके सर, मैं थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहा था। कोई ना होता है, जब ज्यादा टाइम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऐसे माइनर मिस्टेक की वजह से क्या कहते हैं आगे थोड़ा इश्यू हो सकता है। तो वही सिंपल चीजों को थोड़ा ऐसे सिंपली देखने का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ये एक हो गया और फाइनली केस -1। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सब्ट्रैक्शन आ जाए। प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अभी ये पूरा कोड रेडी हो गया, तो अभी हम इसे रन करते हैं।
ठीक है, तो ये रन हो गया। और टेस्टिंग के लिए मैं, अच्छा ये ऊपर में है 3 1 2, तो ये क्या करना चाहिए? वन बाय वन प्रोडक्ट दे रहा है। अभी अगर मैं वही करूं फिर से, तो इस बार मैं ले रहा हूं 3 एक और बार अगर मैं इसे रन करूं, एक या एक और बार रन करूं इसे, तो 3 -1 2, अब क्या देगा? 1 रिजल्ट देगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। राइट, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 1 रिजल्ट देगा। रन विदाउट डिबगिंग। 3 3 3, ये क्या देगा? 1 रिजल्ट देगा आफ्टर डिवाइडिंग। आर यू श्योर? सो आई थिंक थर्ड केस में डिवाइड ही था। देख लेते हैं, थर्ड केस में एक्सपोनेंट था। ओके सर, देन 27। 27, यहाँ पे हमें 0 दे रहा है। मामला समझ में आया क्या है? यस सर। तो वो मामला क्या है? माइनस कर दिया उसने। अरे नहीं नहीं, मामला ये है कि जो एक्सपोनेंट है उसमें सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इनिशियलाइज करना होगा। वही ए, वरना ए ना करके अगर 1 भी करते तो वैसे भी काम कर जाएगा। तो अभी अगर हम इसे रन करें और यहाँ पे वही 3 3 3 फिर से डालें 27, तो वही एक चीज यहाँ से ये भी सीखना चाहिए कि कैसे करें टेस्ट करके। अगर कोई ऐसा बग निकल रहा है तो उसे ट्रबल शूट कैसे करना है, तो वही है। अगर टाइम मिले तो ऐसा एक कैलकुलेटर तुम लोग भी बना देना। क्या कहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, तो बस ये थोड़ा हाथ बैठाने के लिए कि प्रोग्रामिंग कैसा कर रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग वो सबको कैसे अप्रोच करना चाहिए। ये जो अपन केस में ब्रेक लगाते हैं वो रिटर्न 0 का काम करता है। नॉट एग्जैक्टली, ब्रेक मतलब वो एक जो क्या कहते हैं, यहाँ पे रुकने का है। कोई लूप है या फिर कोई कंट्रोल स्टेटमेंट अगर है तो उसे रोकने का काम कर रहा है, क्योंकि एसेंशियली ये एक इफ देन एल्स वाला ही कंडीशन है। ओके, और सिलेक्ट करना है अपने को मल्टीपल ऑप्शन में से अपने को कुछ सिलेक्ट करना। हाँ, तो सिलेक्ट एसेंशियली वो कंपैरिजन एस्पेक्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता है। जो भी सिलेक्ट में कर सकते हैं वो इफ देन एल्स करके भी कर सकते हैं, बस ये थोड़ा सा क्लीन दिखता है। हाँ, तो उतना ही डिफरेंस है, बाकी इसमें नहीं। अगर स्विच केस लगाना नहीं रहता तो हम इफ सिलेक्ट इज इक्वल टू -1 या फिर एल्स इफ सिलेक्ट इज इक्वल टू 0, एल्स इफ वैसे करके करके भी जा सकते थे, और उसमें ये ब्रेक वगैरह वो सब ना लगता। क्योंकि नहीं अभी समझ में आ रहा है कुछ कुछ बातें क्यों लिख रहे हैं। वही मेन प्रोग्रामिंग जो है वो कम्प्लीटली लॉजिक के ऊपर ही है। जो भी हम ऐसे लिखते हैं वो कुछ ना कुछ एक करने के लिए ही लिखते हैं। तो मेन जो हमारा रहता है वो एक टास्क रहता है कि हमें करना क्या है। वो एक बार पता चल गया तो उसके बाद स्टेप्स में उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं और उसके बाद कोड कर सकते हैं। और जो अपन आर्डिनो बोर्ड को जो प्रोग्राम करते हैं वो सी प्रोग्राम की मदद से भी हो सकता है। वो सी प्रोग्रामिंग ही रहता है। इससे पहले मैंने एक बनाया था आर्डिनो बोर्ड, लेकिन मैंने वो प्रोग्रामिंग कॉपी करके पेस्ट किया था।
नहीं, जो सी प्रोग्राम रहता है वो ऐसा ही रहता है कि क्या कहते हैं, मतलब आर्डिनो का जो कोड रहता है कुछ ऐसा ही दिखता है, बस यहाँ पे इंट मेन की जगह पे कुछ और रहेगा, ऐसा टाइप का। ओके नहीं, मैंने 10th स्टैंडर्ड में बनाया था, तब मेरे पास लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं था। लैपटॉप तो मैंने अभी परचेस किया कुछ दिनों पहले, हम्म। तब मैंने मोबाइल से कॉपी करके पेस्ट कर दिया था। Can one of you guys just share your screen and guide Aditya to find where the SCT page is? आई विल शेयर सर। Okay. So I can also share. May I share? Only one is good. Like, yeah, if you can share, then go ahead. Yeah, here the SCT window links. लेफ्ट कॉर्नर। Okay, so the exam link are you telling? Yes, this is the exam link. Okay. Does that help, Aditya? Sir, I think Aditya is not term student. Oh, are you like a, what do you call it? Are you like a qualified student? Okay, in that case, you don't have to worry. Qualifier. Then it is not for you. Yeah, it's fine. Don't worry about it. Okay, so that's basically like what was like the main question that I had prepared for the session. So rest will just do the, we'll just solve the questions in the portal itself. So the screen is visible? Yes, sir. Sir, is this meeting live streamed in YouTube? It's not live stream, but it is recorded. Okay, sir. So I can access it anytime? Yeah. So we'll have like a Google Sheets where uh, with all the links for the recorded sessions. So Sir, you can please just watch update it. करा दीजिएगा. You guys have the link, right? नो सर, सर 2 No, फरवरी sir. से पहले का ही लिंक है सर, उसके बाद का कोई लिंक नहीं है. I'm not talking about the instructor session. Like the TA session is different. ओके ओके. Okay, I'll just confirm with my instructor whether I can share the link. You guys should be getting it soon. ओके भैया, मेरा मतलब जो पिछली क्लास हुई थी उसका कुछ छूट गया था पोर्शन, तो प्लीज जल्दी करा दीजिएगा. Acha. Okay. So I guess we solved 2 of the questions. Yeah, the simple interest and the principal and someone. So let's just do the next one. This is volume of this one. So volume of a sphere. So can you zoom it? Sure. Is it visible now? Yes, sir. Okay. So can you just tell me what we have to do in here? First, we have to define volume as double. Okay. And Then after? We have to use the value of pi as 3.14 and Okay. 4.0 divided by 3.0. 14 into
4 by 3, 4.0 divided by 3.0. Because if 4.0. we not divide by 3.0, if we not put the decimal, it will show some error, like a 0.1 decimal error is there. Good. Okay. And after that, it's Radius into. into 3 times. So we can just do radius 3 times, right? Okay, so this one should work. Sir, we have to also uh, put the bracket. Do we have to? I don't think so. Like everything is just multiplication division over here, and it's basically like the same thing, right? Yes. Yeah, so brackets is not really necessary in this case, but yeah, you can do it if you want like a neater code. So I'll just directly submit it, and 5 out of 5 private tests have passed. So that is the correct code. Moving on to the next question. We have to write the whole thing, I guess. So hashtag include stdio.h int main return 0. Okay, so tell me what we have to do. It is telling write a C program to calculate the sum of the first n odd numbers. The program must take an integer input from the user in variable n and calculate the sum of the first n odd numbers. Okay, so first what do we have to do? First, we have to Define define the variables and Yeah, so int n and int sum. and int sum. now we have to put the value of n, so we use scanf. Okay, scanf percentage %d comma and n. Okay, and after that, Sum is equal to n squared. okay, why n square? So first, n odd number sum is n square for mathematics. Right, so that is a mathematical formula. If we, Yes. okay, I'll just write the mathematical formula since it's easier than doing a full loop and stuff like that. And I don't think we even need like the sum variable. We can just directly print this thing. And then we can just get rid of that. Yeah. Okay, so some errors showing up. So line 12, printf makes conversion. Okay. So literally just this. Expected expression before printer. Right. I have to do this one, the formatting one. So percentage %d and then just n into n. Yeah.
So that is correct. But if we did not want to use n square formula, we would have to, put 2n plus 1 or something like that, and or 2i plus 1, and then iterate up until n. We'll do that if we have the time at the end. Okay. So the next one, complete the program to swap the value of a and b. You're giving that one without using a temporary variable. So how can we do this? First question, did you understand the मतलब क्वेश्चन समझ में आया ना क्या पूछ रहा है? हाँ यस सर सर। ओके, सो कैसे करिए? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यूज करके। ओके, तो कैसे कर सकते हैं? सर एक्चुअली ये मैंने पहले से किया हुआ है, वो समझ के गूगल से, तो मैं नहीं बताना चाहूंगा ये। इट्स फाइन, इट्स फाइन। बाकी कोई? If you cannot unmute the mic, then you can just write it in the chat. I'll read it from the chat. by updating the value of given a and b. Sorry? We have to update the values of a and b. Yeah, so we want to swap them. So a gets the value that is in b, and b gets the value that is in a. Okay, so I'll just write this down. So we have a over here. What should I put over here to maybe in the future get a b value? स्वैप मतलब अपने को बस वैल्यू उसकी पोजीशन बदलनी है कि हाँ, मतलब a का वैल्यू b में जाएगा और b का वैल्यू a में जाएगा। के जगह 3 और 3 की जगह 2। यस। ठीक, तो मैं पहला स्टेप यहाँ पे कर ले रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है वो एक बार देख लो। अब हम b की वैल्यू में a माइनस b कर देंगे ताकि जो छोटी इज इक्वल वैल्यू टू a माइनस को मिल b। जाएगी। करेक्ट। तो ऐसे करने से हमें b में a की वैल्यू कैसे आ जाएगी? क्योंकि हम सबसे ऊपर हमने a प्लस b कराया था, जैसे 2 प्लस 3 वो 5 हो जाएगा। फिर हम सेकेंड स्टेप में 5 माइनस 3 करें तो 2 हो जाएगा, तो वैल्यू स्वैप होगी, a की वैल्यू b में चली गई। राइट। और अगर मैथमेटिकली हम देखें, तो ये जो है मतलब a प्लस बी, इससे a को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते a प्लस बी में, राइट? सो यहाँ पे जो a लिखा है वो एसेंशियली a प्लस बी है, तो a प्लस बी हमारे पास ये पहला वैल्यू आ गया। तो अगर हमें b में a का वैल्यू लाना है तो हम सिंपली b को सब्ट्रैक्ट करने से ये आ जाएगा। तो एसेंशियली यहाँ पे अगर मैथमेटिकली देखिए कि क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है a प्लस बी माइनस बी। Is that understandable?
यस सर। ओके। और फाइनली ए को वापस लाने के लिए, मतलब ए में बी का वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे? सर ए माइनस बी। ए माइनस बी, सही बात है। तो दिस इज द करेक्ट कोड, और हम अगर हम इसे रन करेंगे तो सारे करेक्ट आ जाएंगे फर्स्ट ट्राई में। अभी इसके बाद देखते हैं। अभी हमारा ये मंथली पेमेंट का एक आ गया है। तो यहाँ पे math.h लाइब्रेरी का यूज हो रहा है, तो उसमें पावर फंक्शन को ही हम यूज करेंगे, बाकी और कुछ यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है बताइए जी। सर पहले एनुअल रेट से मंथली रेट निकालेंगे। राइट, जो ये रेट है और एनुअल रेट से हमें मंथली रेट निकालना है। तो सबसे पहले मंथली रेट इक्वल्स क्या, एनुअल रेट बाय 12, और यहाँ पे इंटू 100 करना चाहिए या डिवाइड बाय 100? इंटू 100 होगा। ठीक है, वो एक बार ये लगा लिए। और अभी इसके बाद क्या करें? अब मंथली पेमेंट निकाल लेंगे क्योंकि अपने पास मंथली रेट आ चुका है। ठीक है, तो मंथली पेमेंट इक्वल्स क्या है, ऐसे करके चलते हैं। पहले तो वो फॉर्मूला ही डायरेक्ट पुट कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला को ही डायरेक्टली रख लेते हैं, प्रिंसिपल इनटू मंथली रेट इनटू वो मंथली पेमेंट से पहले कॉमा आता है। 1 प्लस मंथली रेट, और यहाँ पे हमें पावर सिंबल चाहिए। पावर सिंबल कहाँ से लाएंगे? सो मंथली रेट मल्टीप्लाई के बाद। हाँ, तो इसके लिए हमें एक पावर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। पावर फंक्शन का ये रहता है कि वो हमें एक क्या कहते हैं, वो हमें एक बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में ये दे रहा है, और फाइनली हमें नम मंथ्स इसमें डालना है। तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या करना है? तो पावर फंक्शन को यूज करके पहले ही वो करना। राइट, तो फिर मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे, और -1 कर देंगे। -1। तो फिर ये हो गया हमारा मंथली पेमेंट। अरे ये कॉमन लग गया था यहाँ पे, ओके। बाकी ये ये प्रॉब्ली काम करेगा लेकिन गलत आउटपुट देगा। हाँ, तो फिर एज आई सेड काम कर रहा है कोड, लेकिन गलत आउटपुट दे रहा है। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे बहुत ही ज़्यादा है ये। वो 12 into 100 पे ब्रैकेट लगेगा था। यहाँ पे या तो ब्रैकेट लगेगा या फिर डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे डिवाइड लगाएं तो वो काम करेगा। ब्रैकेट से भी हो जाएगा ना वैसे। ब्रैकेट से भी लगाएगा, लेकिन ब्रैकेट्स 2 सिंबल हो गए ना, और ये एक सिंबल है, और हमें जितना लेजी हो सके उतना लेजी बनना है ये कोड में।
तो ये हो गया इधर। प्राइवेट टेस्ट केसेस को देखते हैं। प्राइवेट टेस्ट केसेस भी पास। तो अभी बस एक फाइनल कोड बचा है। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो बॉयलर प्लेट कोड नहीं है, तो उससे पहले मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे include stdio.h just a second. Include stdio.h int main ओके। तो अभी क्या करना है यहाँ पे? पहले पहले रेडियस हाइट और height वॉल्यूम को डिफाइन कर देता हूँ। राइट। तो फिर हमें एक ये चाहिए, डबल के फॉर्म में ये दो चाहिए, राइट। और हमें ये दो लाइन में दे रहा है, एक लाइन में नहीं दे रहा है। तो इसके लिए सिंपलेस्ट तरीका है दो स्कैनएफ को यूज करना। अच्छा, पहले वेरिएबल int को डिफाइन लगा देते हैं, पहले डबल को दे देते हैं। डबल क्या क्या चाहिए हमें? r रेडियस चाहिए हाइट और वॉल्यूम। और h चाहिए, राइट। वॉल्यूम को हम डायरेक्टली ऐसे ही प्रिंट कर लेंगे। ओके तो r हो गया, h हो गया, और स्कैन f में परसेंटेज क्या कह रहे lf, ये पहला वाला का हो गया। इसके बाद दूसरा वाला के लिए हमें क्या करना चाहिए, सिंस वो नेक्स्ट दूसरे लाइन में लिखेंगे आ रहा है? स्लैश एन। बैकस्लैश एन बैकस्लैश n, वैसा ही है। और उसके बाद फिर से परसेंटेज lf। उसके बाद बस वही एंड r कॉमा एंड h। तो ये हो गया हमारा ये स्कैन करने का। इसके बाद वॉल्यूम को डायरेक्टली ये प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट एफ परसेंटेज 0.2 lf, अच्छा ये 0.3 हो गया, 0.2 lf। और यहाँ पे हमें चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 3.14 multiplied by radius and multiplied by height. टाइम्स r टाइम्स h। ये सही है? यस सर। ओके। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड हिंदी, राइट? सभी को हिंदी समझ में आ रही है? और should I repeat this once again in English? Okay. डबल sir, आर no. Sorry. डबल आर डॉट टू एच Double r dot 2h what? 13.14 समझ गया, पाई की वैल्यू है, लेकिन डबल आर डॉट वो हम इसे ऐसे डिफाइन किए थे ना, ये रेडियस और ये हाइट। ओके पहले लाइन में रेडियस आता है, दूसरे लाइन में हाइट आता है। तो उसे ही स्टोर करने के लिए ये वेरिएबल्स थे और उन्हें यहाँ पे डाल दिया। तो अभी डायरेक्टली सबमिट कर रहे हैं और फर्स्ट ट्राई में ही सब कुछ पास हो गया। तो वही ये पीपीए सारे थे। जीआरपीए वगैरह आई गेस यहाँ का सोल्यूशन तो है ही। हाँ, सोल्यूशन तो है पहले से ही। ये बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को इसमें डालना है। GRP2 में गिवन टाइम इन सेकेंड्स टू आवर्स मिनट सेकेंड्स। अच्छा, इसे क्या है, डिवीजन वगैरह वो सबसे हो जाएगा।
तो वही आई मीन ग्रेड असाइनमेंट का अगर कोई डाउट है तो यू कैन सेव, हम अभी के अभी सॉल्व कर लेंगे उसे। ओके, तो आई गेस सभी का डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा वीक 3 का। अभी एक जनरल डाउट सेशन को लेते हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम ऐसे में डाउट है तो वो बता सकते हैं। सर मेरा VS कोड का टर्मिनल वाला चल नहीं रहा है। आपका VS कोड में क्या? लाइक जब मैं इनपुट के लिए टर्मिनल यूज करता हूँ तो उसमें वैल्यू डालने के बाद आउटपुट आता नहीं है। स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं? हाँ सर। GRPA वीक 3 क्वेश्चन 4। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैथ की जरूरत पड़ेगी। जो फ्रैक्शन है उसमें थोड़ा मैथ की जरूरत पड़ेगी। पहले ये शायद का देख लेते हैं उसके बाद। सर जैसे कि अभी एक मैंने शॉर्ट फॉर्मूला टाइप लिखा है, अब मैं इसमें रन करूंगा। लाइक मैं एंटर करता हूँ वैल्यूज को, तो फिर ये ऐसे शो ही नहीं करता है आगे। आई मीन जितना मुझे लग रहा है ये क्या कहते हैं, रन ही नहीं हुआ है कोड। अभी रन हुआ है। ये आगे आउटपुट ही नहीं देता। वो कंपाइलर वो सब का कॉन्फ़िगरेटर सेटिंग लगा लिया है? हाँ वो सब लगा दिया मैंने, इसको 2-3 बार वापस इंस्टॉल करके वापस से सेटअप करा है, तो इसमें भी इशू आ रहा है मेरा। वो पाथ वगैरह कॉपी। हाँ पाथ वगैरह सेट कर दिया एनवायरमेंटल सेटिंग्स में, तो पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है में। स्कैनफ ये सब तो ठीक है। ऑनेस्टली आई एम नॉट रियली श्योर। ये मैं VS कोड को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। ये क्या कहते हैं, सेशन के पहले ही मैं इसे सेशन के पहले ही सेटअप किया था इसे, तो आई एम नॉट रियली श्योर हाउ टू यूज़ VS कोड ऑल दैट वेल। जनरली मुझे मैं लगता है उसने विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ। एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं किए होंगे, कोड रन वगैरह। वो कर लिया, एक्सटेंशन वगैरह सब इंस्टॉल कर लिया मैंने, कोड जनरल वगैरह। माइट बी आई एम मतलब मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता। ओके सर। भैया आपने जो लास्ट वाला प्रोग्राम लिखा था कैलकुलेटर वाला, क्या आप वो सेंड कर सकते हो? श्योर। उसे मैं क्या कहते हैं, वही जो TA क्वेश्चंस वाला एक ये था उसमें डाल देता हूँ। ये मोहित क्वेश्चन तुम्हारा टर्मिनल कैसे चल रहा है? क्या बोला जी भैया? तुम्हारा टर्मिनल कैसे चल रहा है मोहित? कैलकुलेटर हाँ जो जैसे तुमने क्वेश्चन में करके दिखाया था ना, तुम्हारे टर्मिनल में वैल्यू डाला था, तुम्हारा आउटपुट आता था। वो चल गया मेरा एडिशन वाला, एडिशन बोलता मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। ठीक है, तो मैं ये चैट में डाल दिया हूँ, वहाँ से देख सकते हो। ओके, मुझे वो मतलब कैसा आपने सिंपल वे में लिखा था ना, स्विच वगैरह का मतलब समझ में आया, तो उसको एक बार प्रैक्टिस करूंगा तो आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो अभी मैं जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देख लेता हूँ। आई होप ये करेक्ट टैब है। दिख रहा है स्क्रीन सभी को? यस सर।
ठीक है। आदित्य ये कॉल में ही है ना? या कॉल में ही है। ओके, सो द थिंग अबाउट दिस इज कि इसके लिए हमें थोड़ा मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं अपना जो नोटबुक ऐप है उसे स्क्रीन पे ले आ रहा हूँ और शेयर एंटायर स्क्रीन। तो ये है हमारा प्रॉब्लम, राइट? तो हमें दिया गया है, अच्छा नहीं, जस्ट एक सेकंड, वो स्क्रीन को चेंज करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम ये है सी फ्रैक इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय x प्लस ऐसे करके, राइट? यू आर गिवन डबल x वो सब एज अ वैल्यू, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो एसेंशली ये कह रहे हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, या क्या था, दो केस लेते हैं, एक इन्फिनिटी को जा रहा है और एक ऐसे ही है। तो इन्फिनिटी को अगर ये जा रहा है तो इसके बाद हम इसे ऐसा कर सकते हैं, सी फ्रैक इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय, एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, ये पार्ट जो है ये इस पार्ट के समान है, ओवरऑल के समान है ये, राइट? तो फिर उसे हम सी फ्रैक लिख सकते हैं। अभी अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो फिर ये हो जाएगा सी फ्रैक स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी फ्रैक प्लस 1। मैं बीच का मैथ थोड़ा सा खा गया हूँ, ये डायरेक्ट कर दिया, बाकी आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे किया। ओके, तो फिर अभी ये हमारा एक स्क्वायर फंक्शन हो गया, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन एक हो गया, और यहाँ पे जितना मेरे को दिख रहा है सी फ्रैक ही हमें चाहिए। तो हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, सी फ्रैक नहीं लिख रहा हूँ, सी स्क्वायर, सी लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइनस एक्स सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डायरेक्टली हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं जो इससे पहले वाला था, क्या कहते हैं, टेस्ट सोल्यूशन, अच्छा नहीं ये वाला, इसका बस हम कॉपी कर सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। तो वही है c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac बाय 2a इज इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट 4 बाय 2। हाँ, तो ये सीधा सीधा बन गया x प्लस माइनस 2 बाई 2। तो c इज इक्वल टू x प्लस 2, मतलब x बाई 2 प्लस 1 या x बाई 2 माइनस 1। कितने दूर तक समझ में आ गया? गाइस समझ में आ गया इतने दूर तक? यस सर। ठीक है, तो वही
एक्स प्लस वन बाई सी फ्रैक, ये इधर आया तो ये बन गया ऐसे, और या ये सी स्क्वायर, ओके। अच्छा, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी। ये माइनस हो जाएगी, इसे अगर इस साइड को ला रहे तो माइनस हो जाएगा। तो अभी ये हो गया माइनस है 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। अच्छा, ये पार्ट पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अपना। बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये, इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 2। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सी इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4x होल बाय 2। क्या बता, आई मीन डायरेक्टली इसे ही डाल सकते हैं, और जितना मेरे को लग रहा है ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्शन को खा जाएगा। क्या बता दिया, मतलब इसका अगर हम सोल्यूशन को एक बार देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये रिकर्सिव ही लगा दिया है। हम्म। अच्छा, तो माई मिस्टेक, ये क्या कहते हैं, इन्फिनिटी तक नहीं जाता है, बस इतने दूर तक जाता है। क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 लेयर तक जाता है, उसके बाद से ये क्या कहते हैं नहीं जा रहा है। तो वही इस पे क्या कहते हैं, वही ऐसे करके सर कर मैंने दो। भी 6 लेयर तक ही किया था और सबमिट कर दिया था, वो हो गया था ऑल टेस्ट केसेस पास। जितना मेरे को लग रहा है वैसा ही होना था ये। तो हाँ, मतलब अगर ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक जाता बोलते, तो फिर उस केस में ये फॉर्मूला वो सब लग जाता मैथ में। लेकिन हाँ, सिंस ये सिर्फ 6 लेयर तक ही जा रहे हैं, मैथ की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा के हो गया। चलो, बाकियों का कोई डाउट है? आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है कुछ व्हाट्सएप? व्हाट्सएप वो आई एम अफ्रेड मैं नहीं दे सकता हूँ। मेरा ईमेल पे आप मैसेज कर सकते हैं। ईमेल दे दीजिए। ये मेरा ईमेल है, यहाँ पे आप जी चैट कीजिएगा। मैं ईमेल्स को रिस्पॉन्ड ज़्यादा नहीं करता हूँ, ये जी चैट्स पे मैं कर लेता हूँ, वो ये जो रहता है ये चीज़ है। कोई नहीं, समझ में आ गया ना आदित्य? आपने इंटर्नशिप के लिए ट्राई नहीं किया? कौन सी इंटर्नशिप का? नहीं, आप अभी डिप्लोमा लेवल में है ना? ये टीए शिप तो कर रहा हूँ मैं। ओके, आपको इसके मिल रहे हैं पेमेंट? हाँ, इसी के मिल रहे हैं। अच्छी बात है। भैया पिछले दिन मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो टीए सर थे उन लोगों को पूछा कि रोबोटिक्स में और आर्डिनो वगैरह में जिन लोगों का इंटरेस्ट है एक व्हाट्सएप ग्रुप खोलना। तो उन्होंने बोला कि सीनियर से पूछना कि ग्रुप ऑलरेडी है तो उसमें ज्वाइन कर दो। तो आपके पास क्या वो कुछ उस तरीके का ग्रुप है?
आई मीन मैं पर्सनली उस ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन ये कुछ स्टूडेंट्स मिलके एक ग्रुप बनाए हैं, ये DIY कह के। तो वहाँ पे रोबोटिक्स वो सब का होता रहता है। ऑल्दो मैं खुद उस ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ, तो आई कैन नॉट रियली प्रोवाइड द लिंक टू जॉइन दैट ग्रुप। जनरल डिस्कशंस आप क्या कहते हैं इस आप जो क्या कहते हैं कोई ग्रुप में है क्या, स्टूडेंट ग्रुप में? हाँ, जो हाउस में है बस। तो फिर एक बार जनरल डिस्कशंस जो है ग्रुप चैट, उस पे ये डाल दीजिए कि आपको ज्वाइन करना है ये DIY या वैसा कुछ को, तो आपको लिंक मिल जाना चाहिए। मतलब जनरल डिस्कशन वाला ग्रुप, मतलब मुझे समझ नहीं आया ठीक। अ, जिस मतलब ग्रुप आप के बारे में बोल रहे हो ना कि वो रोबोटिक्स वाला, तो उसका लिंक वगैरह हो तो आप, अगर आप उस ग्रुप में ऐड हो तो आप खुद वो लिंक सेंड कर सकते हो उसको। वही तो बात है ना, मैं नहीं हूँ उस ग्रुप में। बाकी देखिए, मतलब ये थोड़ा ढूंढने से मिल जाएगा। मोहित, कैन आई हैव योर मेल आईडी? ग्रुप में हो क्या तुम, व्हाट्सएप ग्रुप में? कौन से वाले? भेजू लिंक। नहीं, भेज दो। बाकी एक चीज ध्यान रखना कि क्या कहते हैं, कोई अनऑफिशियल ग्रुप का अगर लिंक यहाँ पे भेज दो तो फिर यूर ज्वाइनिंग एट योर ओन रिस्क, ठीक है? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप थे पास्ट में जो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को स्कैम कर गए थे, तो जस्ट बी केयरफुल। मैं सब कुछ नहीं इधर। बस स्टूडेंट्स का ही ग्रुप है सर, दूसरा कोई नहीं। चलो ठीक है फिर। बाकी आई गेस इतने दूर तक ठीक था। एनीवन एल्स हैज एनी डाउट्स? If not, then I'll be ending the recording. ओके भैया।